So, a very good afternoon online class. I guess Piyush, Sonia, Manoj, all of you there. So, what were we looking at? We were looking at हम लोगों ने we've completed so far. What have we completed? We've completed the solar system, the the astronomy part. We went to the geomorphology, the landscape, the physical landscape part. Then we moved on to understand the climate part. Climate में with the winds and the other things, trade winds and other things. And then we moved on to understanding the ocean part, the ocean, the upwelling region, and the La Nino, El Nino. इसके बाद we have to now wind up the mapping portion. हमें mapping portion को wind up करना है. So I'll start off with the mapping portion. Then we'll move on to understanding the soils of India, and then we'll go on to understand the agriculture. Agriculture पे काम करेंगे, ठीक है? So India mapping से start करते हैं. I'll start off with the mapping of India. We have completed almost the mountain systems, the passes, the glacier. बताओ बताओ कुछ चीजें रिवाइज करते हैं. Let's revise. If I talk about Western Ghats, कितनी state? Western Ghats passes through what states? Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. What marks the meeting point of Eastern Ghats and Western Ghats? Nilgiris and Nilgiri mountain ranges. ठीक है? Then what are the name some ranges of Eastern Ghats? पालिनी कहाँ से आ गया? पालीकोंडा, वेलिकोंडा, जावडी, शेवरॉय, शेषाचलम, पंचमलाई, सिरुमलाई, एरमला, नलमला, एरामला और नलमला. ठीक है? 6 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? सुमात्रा एंड निकोबार. 8 डिग्री चैनल between 8 degree channel is between Minicoy and Maldives. Between Minicoy and Maldives. कार निकोबार और लक्षद्वीप में कैसे आ गए? कार निकोबार कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ है? रट्टा मारा है तब भी. निकोबार और लक्षद्वीप तो पता होगा कहाँ पे है. दोनों अलग अलग है ना. दुखी है आज बहुत ही. हाँ, he's very upset. सिर्फ रट्टे मारे हैं. ठीक है. सियाचिन से कौन सी रिवर आती है? सियाचिन से श्योक रिवर आती है. ठीक है. So what did we do? We started off with Indus Valley, Indus river system. We went to गंगा river system. ये हमने कर लिया. यमुना देखा, यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज देखी. चंबल, सिंध, बेतवा, केन. बेतवा और केन के बीच में कौन सा डैम है? धौदान डैम. और कौन सा नेशनल पार्क या वो है? पन्ना टाइगर रिजर्व्स है. पन्ना नेशनल पार्क है. और आपका एक और है, दैट इज योर केन घड़ियाल भी है आपका. केन घड़ियाल सेंचुरी भी उस तरफ ही है. ठीक है. दिस वाज अबाउट योर, ओके, लेट मी सी व्हाट हैज गॉन रॉन्ग. दिस वाज अबाउट द रिवर सिस्टम. देन एक काम करते हैं, रिवर सिस्टम पे ही कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक दिस इज योर पेज नंबर 69 पे. 69 पे यू हैव नर्मदा. ठीक है. तो हमने जो रेंजेस, हमने जो रिवर्स देख ली वो हमने इंदस, गंगा देख लिया. अच्छा, ब्रह्मपुत्र नहीं देखा है ना अभी, तो पहले ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं क्योंकि फिर हिमालयन कंप्लीट हो जाएगी. So first look at Brahmaputra. This is Brahmaputra. Brahmaputra comes from Tibet. Like Indus also comes from Tibet. Satluj also comes from Tibet. Brahmaputra also comes from the Tibet region. Chemang Yungdung Glacier है ब्रह्मपुत्र का. Chemang Yungdung Glacier. ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहते हैं. Where it enters India, इसको हम दिहांग कहते हैं. दिहांग पे आपकी 3 ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज और मिलती हैं. जैसे ब्रह्मपुत्र as it enters India, it is called as Dihang. Then there is Dibang river which meets, there is Lohit river which meets. Then it is known as Brahmaputra. Brahmaputra flows through Arunachal Pradesh, Assam, and then enters Bangladesh. Arunachal Pradesh, Assam में जाके बांग्लादेश में जाती हैं. ब्रह्मपुत्र की काफी ट्रिब्यूटरीज हैं. ऊपर से आपकी है सुबनसिरी, you have Manas, कामेंग, संकोश, ये सब है. नीचे से जो आपकी ट्रिब्यूटरी होती है धनसिरी और कोपिली होती है. दिस इज योर ब्रह्मपुत्र. एक बार हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र में क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. दिस इज योर पेज नंबर 84. पेज नंबर 84.
Fine. On page number 84. Yeah. Page number 84. You have your Brahmaputra. ठीक है. Page number 84. This one. Yeah. 84, 83. क्या है इसका origin? It comes from Tibet near Chemang Yongnung Glacier. It is known as Yarlung Sangpo. It enters India as Dihang. इस पे दिबांग और लोहित आके मिलती है. फिर ये आपकी ब्रह्मपुत्र बनती है. फिर ये आपकी ब्रह्मपुत्र बनती है. यहाँ पे आने के बाद आपका तीस्ता, संकोश, मनास, कामेंग, सुबानसिरी. तीस्ता, संकोश, मनास, कामेंग एंड सुबानसिरी. ठीक है. तीस्ता, मनास, कामेंग, संकोश एंड सुबानसिरी. ये है आपकी धनसिरी और ये है आपकी कोपिली. कोपिली न्यूज में रही है. व्हाई? बिकॉज कोपिली पे आपका पोल्यूशन हुआ था. कोपिली पोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज हियर यू हैव मेघालय. ओके. इन मेघालय यू हैव रैट होल माइनिंग. पता है रैट होल माइनिंग? कोल है यहाँ पे मेघालय में बिकॉज यू हैव कोल. और कोल की जो सीम्स हैं, मैंने दी सीम्स, जितना कोल मिलता है, दे आर वेरी वेरी शॉर्ट. मतलब 2 meters, 3 meters, 4 meters की ही सीम है. So it is not possible that a person of a higher height can go inside. So what do? In the seam, they try to create rat holes. Through the rat holes, once they create, this is the whole seam. Through the rat holes, they send small kids. They send the kids whose height is less, and kids go inside, and then they can take out the coal. तो ये बहुत ही अच्छा. अगर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ कि आपकी कोल सीम नीचे गिर गई तो बच्चों के लाइफ पे भी बात आ सकती है. और ये क्या करते हैं? इलीगल माइनिंग है, इलीगल कोल माइनिंग है. बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक माइनिंग. चाइल्ड लेबर को भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो. तो दिस इज अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ माफियाज. व्हाट डू इज, एंड इट इज अनसाइंटिफिक माइनिंग. कोल निकालते हैं और कोल बाहर डंप कर देते हैं. बाहर डंप कर दिया कोल, द कोल इज डंप्ड. So lot of rainfall. Because of the rainfall, there's a lot of pollution that goes in the nearby water bodies. One of the pollution source gets your Kopili river. तो Kopili में pollution होता है. Why? Because of the mining, coal mining in Meghalaya. Coal mining कैसी होती है मेघालय में? rat hole mining होती है. Child labor use होता है. बच्चों को भेजते हैं अंदर. क्यों भेजते हैं? क्योंकि सीम, कोल सीम सिर्फ 3 to 4 मीटर की होती है. 3 to 4 feet और मीटर 3 to 4 feet की ही होती है. तो बच्चे ही जाके अंदर दे कैन एक्चुअली टेक आउट द माइंस. तो एनजीटी ने भी बैन करने के लिए कहा है. यहाँ पे जो माइनिंग है, बोला था कि रैट होल माइनिंग इज अनसाइंटिफिक, रैट होल माइनिंग इज डेंजरस, एंड एनजीटी सेड दैट दिस माइनिंग शुड बी बैंड. रैट होल माइनिंग शुड बी बैंड इन मेघालय, इन द स्टेट ऑफ मेघालय. तो मेघालय स्टोरी से क्या पता पड़ता है? स्टोरी से पता पड़ता है कि मेघालय में कोल है. लोंगारो खासी जयंती, यू हैव कोल. This leads to pollution of Kopili River. It has many other issues also, and the banning was done by NGT. ठीक है, National Green Tribunal. National Green Tribunal के बारे में पता है? Is it a statutory body? Statutory किसी एक्ट के अंदर बना है कि नहीं? Is this created under कौन सी एक्ट के अंदर बना है? NGT एक्ट ही है. NGT एक्ट ही है 2010 के आसपास. उसके एक्ट के अंदर ही बना है. ठीक है, हम बात करते हैं. हम वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र. ओरिजिन इज चेमांग युंगनिंग ग्लेशियर, ट्रेवल्स ईस्टवर्ड नोन एज सांगपो. इट टेक्स अ यू टर्न अलोंग नामचा बरवा. यहाँ पे नामचा बरवा है तो यू टर्न लेती है अलोंग नामचा बरवा. The river when it entered India is called as Dihang or Siang. After meeting Dibang, Siang and Lohit, it is called as Brahmaputra. Major left bank tributaries are Buri Dihing, Dhansiri. The right bank tributaries are जो ऊपर से आ रही है, सुबनसिरी, कामेंग, मनास एंड शंकोश. और बांग्लादेश में भी एक ट्रिब्यूटरी मिलती है. एक और ट्रिब्यूटरी है तीस्ता. यू कैन सी तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड तीस्ता मीट्स ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश. So तीस्ता meets Brahmaputra in Bangladesh. So you have Brahmaputra, Siang, Dihang, Dibang, Lohit, और ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी बुरी दिहिंग, कोपिली ऊपर से आ रही है, संकोश, मनास, कामेंग, तीस्ता है, सुबनसिरी है. ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. जलढाका इसको एक्चुअली जैसे आती है ना तब उसको दिहांग बोलते हैं. दिहांग बोलते हैं. दिहांग पे जब दिबांग और लोहित मिलती है उसके बाद आप इसको
ब्रह्मपुत्र बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या पूछा था, इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं आपके। what question have they asked? They have asked this question. They have asked question, which of the following are tributaries of Brahmaputra? Which of the following are tributaries of the Brahmaputra? We have Dibang, Kameng and Lohit. Dibang, Kameng and Lohit. 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. D, 1, 2 and 3. Anybody else? Any other option? सोनिया, पीयूष, बताओ आंसर क्या है? डी है, 1, 2 and 3। ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरीज है। और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? मनास है, संकोश है, कामेंग है, सुबनसिरी है, बूढ़ी दिहिंग है। आप ट्रिब्यूटरीज नाम याद कर लेना, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। इसके आगे बढ़ते, तीस्ता पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, यूपीएससी ने दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन तीस्ता। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सिंपल है, अगर लॉजिक लगा सकते हो तो। The source of river Teesta is same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. River Rangit originates in Sikkim and is tributary of river Teesta. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Last वाला option है 1, 2 and 3. Last वाला option है online class. The last option is 1, 2 and 3. एक मिनट, क्या है आंसर? एनीबडी? How many for A? How many for B? कनिका, वैभव, ओमकांत. How many for C? How many for D? कनिका, आंसर? ठीक है, और कोई क्या लॉजिक लगाया आंसर बी के लिए? व्हाट इज द लॉजिक दैट वी हैव अप्लाइड? एलिमिनेट कर दिया 3 को, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं करती है, बट वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तो वो बे ऑफ बंगाल में कैसे ड्रेन करेगी? फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। इट डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, रादर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो इट डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर उसको एलिमिनेट करते हो तो आंसर है। एक और लॉजिक लगा सकते थे कि अगर आप मैप को भी ध्यान से देखें, इफ यू हैव वॉच्ड द मैप आल्सो, हियर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट समवेयर हियर, राकास के पास, सिमांग युंगनुंग ग्लेशियर के पास, राकास के पास। और तीस्ता कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? तीस्ता यहाँ ओरिजिनेट हो रही है। तो कहाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का origin same होगा? तीस्ता and ब्रह्मपुत्र cannot have the same origin. So even if I have to eliminate this, I can eliminate the source of तीस्ता is same as that of the ब्रह्मपुत्र, and तो गलत है। 1 is also wrong. So even if I eliminate 1, I can get the answer. Simple. अगर सोर्स नहीं भी पता है, अगर डायरेक्शन भी पता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, इतना दूर से आती है, और तीस्ता कहाँ से आती है, ये भी अगर लॉजिक लगा लोगे तो आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीस्ता पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नहीं, इट डज नॉट ओरिजिनेट इन कंचनजंगा, इट ओरिजिनेट्स नियर कंचनजंगा। तीस्ता बेसिकली दिस इज योर तीस्ता रिवर। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से है, तीस्ता यहाँ से है कहीं से। ठीक है, अगर इतनी बड़ी रिवर होती तीस्ता की, वहां तक आती, तो हम तीस्ता के लिए अच्छे से पढ़ते पहले ही। मतलब हमने आज तक अपने एनसीईआरटीज वगैरह में भी नहीं पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र के लिए पढ़ा हुआ है। तो तीस्ता का जो ओरिजिन है, दिस इज पेज नंबर 85, ऑन पेज नंबर 85, 84 जो भी होगा आपके लिए, यू हैव तीस्ता। तीस्ता का ओरिजिन इज सोलामू ग्लेशियर या जेमू ग्लेशियर या चुलामू ग्लेशियर, कुछ भी बोल सकते हो। जेमू ग्लेशियर है, चुलामू ग्लेशियर या सोलामू ग्लेशियर। तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, रंगित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। तो तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रंगित। रंगित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। डैम इस पे तीस्ता बैरेज है। तीस्ता बैरेज काफी न्यूज में रहता है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश और इंडिया के लिए। तीस्ता बैरेज, इसके पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है कॉल्ड एज दी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तीस्ता flows through Sikkim and West Bengal only. It flows through Sikkim and West Bengal only, and
it enters it meets Brahmaputra in बांग्लादेश. It meets Brahmaputra in बांग्लादेश. इंडिया और इंडिया में सिर्फ सिक्किम और वेस्ट बंगाल में ये फ्लो होती है. और ब्रह्मपुत्रा भी मेजरली इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और आसाम से ही फ्लो होती है. ठीक है, इज इट फाइन? तीस्ता कहाँ ओरिजिन करती है? चिलामू ग्लेशियर में. इसकी ट्रिब्यूटरी है रंगित रिवर. ये खुद ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की और ये सिर्फ 2 ही स्टेट में फ्लो होती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, और जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जाके मिलती है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. आई गेस तीस्ता पे एक और बार क्वेश्चन पूछा था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, ये जो क्वेश्चन जो हमने तीस्ता वाला देखा, दिस वाज आस्क्ड इन 2017, बट दे हैव अगेन आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन तीस्ता. आई थिंक वो नहीं है मेरे पास, बट देन दैट वाज आल्सो आस्क्ड. ठीक है, फाइन. हाँ हाँ हाँ, नहीं इतना डिटेल में दे दो, आई डोंट थिंक दे एवर आस्क यू. ठीक है, आगे बढ़े. तो इसके बाद हमने अपना हिमालयन रिवर सिस्टम्स देख ली. लेट्स मूव ऑन टू नर्मदा नाउ. लेट्स मूव ऑन टू नर्मदा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नर्मदा. If I look at river Narmada, if I look at river Narmada, Narmada is coming from अमरकंटक. अमरकंटक से एक और रिवर देखी थी हमने, कौन सी थी? तो नर्मदा भी अमरकंटक से आती है. ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ये आपका कायमूर रेंज है, ये विंध्यन रेंज है, यू कैन सी. ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा, गाविलगढ़, महादेव, अमरकंटक. यहाँ पे राजपीपला भी होगा. ठीक है, तो आपने देखा था आरजी मैम, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, अमरकंटक, और उसके बाद माइकाल होता है. तो आपकी एक रिवर जाती है सोन, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक रिवर जाती है नर्मदा. सो नर्मदा का ओरिजिन हो रहा है समवेयर फ्रॉम अमरकंटक. नर्मदा इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. कैन समबडी टेल मी व्हाई डज नर्मदा फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? इफ यू, द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू इज दिस. If you look at the major rivers, if you look at the major rivers of the peninsular plateau, the major rivers of the peninsular plateau, you'll see that they are flowing towards east. Krishna, Godavari, Kaveri, Vaigai. 2 rivers, that is Narmada and Tapi. Narmada and Tapi. And इसके अलावा भी अगर आप विंध्यास से देखेंगे तो विंध्यास में, अगर ये गंगा ये यमुना है, तो विंध्यास में ऐसे रिवर जाते हैं. ठीक है, देखा हमने चंबल, सिंध, बेतवा, केन. चंबल की भी रिवर्स ऐसे आ रही है. तो जितनी भी रिवर्स हैं या तो आपकी ऐसे जाती है टुवर्ड्स सेंट्रल हाईलैंड्स, और बाकी रिवर्स ऐसे जा रही है. बट नर्मदा और तापी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है. और यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं, तो ऐसे जाती है. अच्छा, और कोई रीजन? सी, अगर रिवर टिल्ट देखोगे, अगर आप, रिवर बताती क्या है? इफ आई लुक एट रिवर, रिवर टेल मी कि लैंड कैसा टिल्टेड है. सो इफ द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, दैट मीन्स this portion is elevated, and therefore the river flows like this. So if majority of the rivers are flowing like this, the tilt of the peninsular plateau is west to east. That is the tilt of the Deccan plateau. The whole of the Deccan plateau is west to east. That is, it is rising at the west and it is draining at the, it is less tilted at east. It is at a elevation at west, it is at a less elevation on the east. तो ऐसे है, but ये दोनों उल्टा जा रही. Why is this happening? Because they are flowing through Rift Valley. Elevation से कैसे उल्टा जा रही है? क्योंकि ये Rift Valley से flow हो रही है. क्या होता है Rift Valley? So here this is one land. The land can develop crack. The land can develop crack. As the land develops crack, certain region of the land will become elevated. Certain region will become will be at a lower elevation. तो ये river यहाँ से ऐसे, ये जो रिवर है ये रिवर ऐसे फ्लो होती है. The rivers are flowing through an grid point. So here this is the Rift Valley. जो सेक्शन जो थोड़ा नीचे हो जाता है, इसको आप बोलते हो रिफ्ट वैली.
इसको आप बोलते हो रिफ्ट वैली, और जो पोर्शन ऊपर रह जाता है उसको आप बोलते हो ब्लॉक या होर्स्ट. Either you call this at horse and you call this as the rift valley. So Tapi and Narmada, both of them are flowing through what? Both of them are flowing through the rift valley. Both of them, they are flowing through the rift valley. समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहे हैं. What did I see? I saw Narmada originates at Amarkantak, flows from east to west. It is flowing through Rift Valley. It is flowing through the Rift Valley. So here, origin is Amarkantak. It passes through the plains of, it passes through the places of, through the states of Madhya Pradesh. It passed through Maharashtra. It passes through Gujarat. It drains at Gulf of Khambat. तो अगर गुजरात को देखोगे, so you have Gulf of Kutch and you have the Gulf of Khambat. So it drains at Gulf of Khambat. MP से, महाराष्ट्र से गुजरात से जाती है, गल्फ ऑफ खंबत पे ड्रेन करती है, ओरिजिनेट कर रही है अमरकंटक से, फ्लो करती है रिफ्ट वैली से. अमरकंटक, दिस एंड दिस. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की. यू हैव तवा. तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा. एंड नर्मदा पे आपके बहुत फेमस फॉल्स हैं, वाटर फॉल्स हैं, लाइक धुआंधार फॉल्स. These are the धुआंधार फॉल्स, वेरी ब्यूटीफुल फॉल्स, व्हाइट, एकदम स्नो व्हाइट जैसे धुआंधार फॉल्स. और इसके आसपास ही आपका मार्बल रॉक एक टूरिस्ट प्लेस है. सो मार्बल रॉक एंड दी धुआंधार फॉल्स. समझ आया नर्मदा के बारे में? दैट नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट करी है, कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे क्यों फ्लो करती है, रिजर्वायर उस पे कौन से हैं, और उस पे कौन से आपके वाटरफॉल्स. कौन से स्टेट से? एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात. कहाँ ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं, गल्फ ऑफ खंबत में. तापी भी गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करेंगे. Can I move on? So this was your river Narmada. If I talk about river Tapi, दूसरी रिवर को देखते हैं, तापी रिवर को देखते हैं. ये तापी, आपकी तापी जो रिवर है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आती है, एमपी में आती है. ये भी गल्फ ऑफ खंबत में, दोनों पैरेलल ही चलते हैं. नर्मदा एंड तापी, बोथ ऑफ देम दे रन पैरेलली. दिस इज नर्मदा, यू हैव तापी रनिंग. ये दोनों गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करते हैं. So similar to Narmada, this also rises in MP, passes through MP, Maharashtra and Gujarat. इसकी tributaries है पूर्णा and गिरना. ये आपकी तापी है. This is the तापी river. इसकी tributaries हैं पूर्णा, पंजरा, गिरना. ये सब इसकी tributaries हैं. तापी पे जो डैम है उसको बोलते हैं उकई डैम. और यहाँ पे मेलघाट टाइगर सेंचुरी. मेलघाट है एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, आपका मेलघाट होता है. एमपी और महाराष्ट्र में मेल हो रहा है, मिलन हो रहा है. मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट नेशनल पार्क, और ये तापी से. तो एमपी महाराष्ट्र पे यू हैव दी मेलघाट टाइगर रिजर्व, एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे. यहाँ से आपकी तापी भी फ्लो होती है. क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी में? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड? दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. लिखो, बताओ नर्मदा के बारे में. Look at the question, page number 71. Page number 71 पे question है. Yes, Piyush. It occupies a linear rift valley, flows between Vindhyas and Satpuras. The land slopes to the west from the central India. The land slopes to the west from central India, occupies a linear rift valley, flows between Vindhyas and Satpura. बताओ, what is the answer? How many for A? No. Atib, Vaibhav, क्या है आंसर? सोनिया says B. ठीक है, बताओ. How many for B? How many for C? How many for D?
नन। आतिफ वैभव, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या आंसर है? स्लोप टू द वेस्ट का मतलब होता है ईस्ट में एलिवेटेड ज्यादा और वेस्ट की तरफ स्लोप हो रहा है। स्लोप टू द वेस्ट, स्लोप टू द वेस्ट, स्लोप टू द वेस्ट। अगर चलो ठीक है, अगर स्लोप हायर ऐसे भी समझ रहे हो, वेस्ट में ज्यादा है तो ईस्टवर्ड फ्लो होनी चाहिए ना। अगर वेस्ट में भी स्लोप ज्यादा है तो स्लोप फिर फ्लो कैसे होनी चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट। हाँ तो फिर तो हम तो वाई इस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे ना कि नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, क्यों? हम तो स्टैम्प स्टेटमेंट को नहीं भूलो ना, नर्मदा से पूछ रहे क्यों, क्योंकि नर्मदा वो एक्चुअली यही चेक करना चाह रहे कि आप समझ पा रहे हो कि अगर स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है तो फिर तो उसने ईस्ट की तरफ फ्लो होना चाहिए था, बट वो ईस्ट टू वेस्ट क्यों जा रही है? क्या वो मेन रीजन है? दैट्स व्हाट शी वांट्स, इट वांट्स टू टेस्ट। क्या आपको समझ आ रहा है? दैट्स द आइडिया। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। बी ऑप्शन क्यों? विंध्यास और सतपुड़ा में इट फ्लोज बिटवीन, हाँ तो 1 and 2 होगा ना फिर, अगर ऐसा होता तो 1 and 2 कहाँ दिया हुआ? एक्चुअली वो जो हाँ वो फैक्ट है बट वो रीजन नहीं है। इट फ्लोज बिटवीन देम, दिस इज अ फैक्ट बट इट इज नॉट अ रीजन फॉर इट। द आंसर देयरफॉर हैज टू बी वन ओनली, इट्स नॉट द रीजन फॉर इट, इट्स जस्ट अ फैक्ट। सही बात। हाँ हाँ अलग अलग, मेलघाट और पेंच और मेलघाट अलग अलग है। ठीक है, कैन आई मूव ऑन? So we were looking at what? Acha, if I ask you one question, can somebody tell me? If I say, so no, I'm. That's all right. If I'm looking at this question, I know that India has the northern mountain complex. We have plains, and then we have peninsular plateau. So I'm looking at the northern mountain complex. We have northern mountain complex. मुझे उसके बारे में जानना नहीं है. Plains के बारे में ज़्यादा question पूछता नहीं है, तो I'm not interested. I am looking at the peninsular plateau. If I look at my peninsular plateau, I can divide my peninsular plateau into two major parts. One is the above your Satpura. Above the Satpura, we call them as the central highland. Above the Satpura, you call them as central highland. Below Satpura, you call them as Deccan plateau. If I ask you the slope of Deccan plateau, what is the slope of Deccan plateau? It is tilting towards the east. Therefore, the slope is west to east. That's the slope, west to east slope, tilting towards the east. If I ask you the slope of Central Highland, can somebody tell me what is the slope of Central Highland? ये जो Central Highland है, इसका क्या slope? ये वाला region, इसका क्या slope है? Now north west to south east. और कोई? North south west east. आप कह रहे हो कि north west to south east है. North west to south east है. North west to south east. नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है ना? आप ऐसे बोल रहे हो कि रिवर्स ऐसी जानी चाहिए, फिर तो सारी रिवर्स तो ऐसी आ रही होंगी। बाद में कौन सी नीचे आती है? तो यमुना को जाके मिल जाती है, क्या होगा? मैं पूछ रही हूँ डेक्कन प्लेटू का मुझे, तो क्या होगा? स्लोप क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। रिवर्स कैसे जा रही है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। नो, दिस इज हाउ रिवर्स आर गोइंग, दिस इज हाउ दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर यमुना। तो क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, they flow to the, they are centered, they are flowing from southwest to northeast. You समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. वाई? बिकॉज दिस इज योर यमुना, दिस इज यमुना, let's say this is Ganga, you have Yamuna, and all the rivers are moving like this, the southwest to northeast. Clear? हाँ हाँ, yes. ठीक है, all of you clear with this? आगे बढ़ते हैं. So what were we looking? We were looking at the peninsular plateau and some of the slopes. Now हमने क्या देखा? नर्मदा देखा, तापी देखा. Moving to what? गोदावरी, कृष्णा and
कावेरी। अभी तक हमने कौन सी रिवर देख ली? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इंदस एंड इंदस की ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरीज। मूव्ड ऑन टू नर्मदा एंड देन वी मूव्ड ऑन टू तापी। अब हम देखते हैं वापस से आपकी 3 मेजर रिवर्स जो साउथ की है, ये आपकी साउथ की जो रिवर्स है, यू हैव गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। लुकिंग एट गोदावरी, पहले यहाँ पे इमेज देख लो गोदावरी। ठीक है, इज इट ऑल्सो, किसकी बात चल रही है पीयूष, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? गोदावरी पे अगर हम देखें, यू कैन आस्क मी, आई रिस्पॉन्ड टू अ डाउट। पीयूष पहले देख लेते हैं यहाँ पे। गोदावरी में त्रिम्बक हिल से, त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी आती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आने के बाद इट फ्लोस थ्रू योर तेलंगाना, देन फ्लोस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड सम रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो। मेजरली फ्रॉम योर महाराष्ट्र टू तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश। इफ यू लुक एट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको भी आप राइम करके याद करेंगे। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज को याद करना है तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। लेफ्ट बैंक में, राइट में 2 ही है सिर्फ। राइट में एक है आपकी प्रवरा और मंजरा, ये भी राइम कर रहा है, प्रवरा और मंजरा, प्रवरा मंजरा, रारा, प्रवरा और मंजरा, ये दोनों राइम करता है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें गोदावरी के तो ये भी राइम करता है, दूधना, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, दूधना, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती। ठीक है, तो 2 राइम कर रहे हैं। और एक है आपकी SIS, सिस्टर जैसे होता है ना, सिस, यू हैव दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, SIS, सबरी, सिलेरू और इंद्रावती। और नीचे वाली जो है वो भी राइम करती है, प्रवरा और मंजरा, प्रवरा, मंजरा। ठीक है, तो राइम करके ही याद करें। मुझे शौक नहीं है आपको परेशान करने का, UPSC ने पूछी है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, तो पूछा है तो मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? तो गोदावरी देख रहे हैं, राइजेस इन महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर के पास राइज करती है। मेन रिवर पास होती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। गोदावरी गंगा की जैसे होती है, काफी टाइम तक पानी रहता है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, सदर्न गंगा। सो दिस इज दक्षिण गंगा। यू हैव द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, हमने देख ली। अच्छा, एक ट्रिब्यूटरी हमने नहीं देखी है गोदावरी की, वो होती है प्रणहिता। प्रणहिता कैसे बनती है उसको भी देखते हैं। सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, वी हैव दूधना, पूर्णा, यू हैव पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा एंड वेनगंगा, यू हैव इंद्रावती, सबरी, यहाँ से सिलेरू आती है, ये आपकी वर्धा है। जो वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा जब तीनों मिलते हैं, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा जब मिलते हैं, तो इस रीजन को आप कहते हो प्रणहिता। तो एक ट्रिब्यूटरी आपको नाम नहीं दिख रहा होगा पर ट्रिब्यूटरी है, वो प्रणहिता है। वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, बड़ी यानी वॉल्यूम के सेंस में, इस प्रणहिता। नियरली 34% ऑफ the weight is, the 34% of the water is made by the Godavari, combined water of Wainganga, Vardha and Penganga. लेफ्ट में क्या है? पूर्णा, दूधना, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू। राइट में है आपकी प्रवरा, मंजरा और एक ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता। ठीक है, क्या देखा हमने? गोदावरी देखा। फॉर गोदावरी व्हाट आर वी लुकिंग? फॉर गोदावरी वी आर लुकिंग एट, फॉर गोदावरी आई एम लुकिंग एट, गोदावरी originates at, Godavari originates at Trimbak Hill, flows through Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh. The tributaries of Godavari are Purna, Dudhna, Venganga, Penganga, वर्धा यहाँ पे आती है, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा मिलके प्रणहिता बनाते हैं। सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। यहाँ से आती है प्रवरा, यहाँ से आती है मंजिरा। अगर आप इंद्रावती को ढंग से देखें तो ये आपने गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखी, गोदावरी और ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं इंद्रावती को ढंग से देखूं, आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो मैं एक स्टोरी बता रही हूँ। ये आपका छत्तीसगढ़ है, दिस इज छत्तीसगढ़, ओके। टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ यू हैव इंद्रावती, ये इंद्रावती। इफ आई लुक एट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे साउथ में बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं, वेरी गुड फॉरेस्ट।
You also have lot of iron ore resources. You also have good water here. तो यहाँ पे सब कुछ है, इतना अच्छा रिसोर्स है कि अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, बट डिस्पाइट दैट ये रीजन अंडर डेवलप्ड है. यहाँ पे क्यों अंडर डेवलप्ड है, इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं. एक माइथोलॉजिकल रीजन ही है, मैथोलॉजी पे जा रही हूँ. सदर्न छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दंतेवाड़ा, ठीक है, और वहां पे रीजन है दंडकारण्य. बोलते हैं व्हेन पांडव्स वर पनिश्ड, दे वर एक्चुअली सेंट टू दिस फॉरेस्ट में भेज दिया था दंड के लिए. तो दंडकारण्य मीन्स दंड अरण्य, अरण्य मीन्स फॉरेस्ट, दंड मीन्स पनिशमेंट, जो पनिशमेंट वाला फॉरेस्ट है. तो बोलते हैं ये रीजन कर्स्ड है. और इसके बाजू में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड एज दंतेवाड़ा. दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों दंतेवाड़ा पड़ा है, बिकॉज वहां पे टूथ गिरा था. व्हेन सती वाज कट, उसके 108 पार्ट्स अलग अलग जगह पे गए थे, तो यहाँ पे दांत गिरा था दंतेवाड़ा. तो ये बोलते हैं तब भी ये रीजन कर्स्ड ही है, मतलब दिस रीजन इज कर्स्ड, दिस रीजन कैन नॉट डेवलप्ड. दिस इज माइथोलॉजिकल रीजन. द अदर रीजन which is why is this region not developed is because it has a very strong hold of नक्सलाइट्स. नक्सलाइट्स का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे, तो ये रीजन डेवलप नहीं है. पर यहाँ पे अच्छा आयरन ओर है. आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है यहाँ पे, यू हैव इंद्रावती रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, एंड यू हैव गुड वाटर फॉरेस्ट आयरन ओर रिसोर्सेस. ठीक है, तो उसके बाद भी ये रीजन डेवलप नहीं हुआ है. तो ये थी स्टोरी ऑफ इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नेशनल पार्क. इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर, वापस से आते हैं, बैंड जो बार बार मेरा गाना चल रहा है उसको मैं गा रही हूँ. दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, प्रणहिता, और बाद में प्रवरा और मंजरा. ठीक है, यस इट डज करेक्ट पीयूष. आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. ये क्वेश्चन पूछा था आपका, क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड, दिस इज द क्वेश्चन. Which of the following are the tributaries of Godavari? Which of the following are tributaries of Godavari? You have Vamsidhara, Indravati, Pranhita and Pennar. बताओ आंसर. वंशधरा, प्रणहिता, इंद्रावती और पेन्नार. डी वाला है 2 and 3. The answer, the statement D is 2 and 3. The statement D is 2 and 3. Online class. इतनी देखो हमने कितनी रिवर्स देख ली. इंदस, इंदस में हमने देखा सूरू, जास्कर, श्योक, गिलगिट, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. ठीक है, चेनाब में भी चंद्र और भागा, झेलम में भी हमने नीलम और किशनगंगा. ठीक है, ये हमने देखा. फिर हमने देखा अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन. वी सॉ तीस्ता, वी सॉ कौन सी थी, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन. 30 तो मेरे नाम हाथ में है, 30. ठीक है, अभी भी मैंने पूरी नहीं की है. ब्रह्मपुत्र, उसमें फिर लोहित, सुबानसिरी, धनसिरी, मनास, कोपिली, कामेंग, स्वांकोश. इतनी सारी देख ली. नर्मदा, तापी. उसके बाद भी वंशधरा सुनी कहीं? वंशधरा कहीं नहीं सुनी. तो यूपीएससी को कहीं से भी उठा के देना होगा तो वो कहीं से भी उठा के देगी. 30 रिवर तो पढ़ ली है, नाम तो सुन ली है, वंशधरा अभी भी नहीं सुना. When I was doing this question, I was like, इतनी रिवर पढ़ने के बाद भी कौन सी नई रिवर लाके दी है? वंशधरा. पेन्नार भी आपने तब नहीं सुना अब तक. ठीक है, पेन्नार भी अभी तक नहीं सुना है. आंसर इसका क्या है? 2 and 3. आंसर इज 2 and 3. मूविंग ऑन. यस, द आंसर इज 2 and 3. वंशधरा कौन सी रिवर है देख लेते हैं, और पेन्नार कौन सी रिवर है देख लेते हैं. वंशधरा बेसिकली रिवर है आपकी ओडिशा में. ओपन द मैप ऑफ ओडिशा. ओपन द मैप ऑफ ओडिशा. एटलीस्ट लायो नहीं लायो? एटलीस्ट का ओमकांत, रोहित, एटलीस्ट नहीं. आतिब, एटलीस्ट लो, शेयर करो. यहाँ पे दे दो, आगे नहीं है.
यहाँ वाली कौन लेके गया? यहाँ वाली किसकी थी? चली गई? ओडिशा में है वंशधरा रिवर? कैन यू सी वंशधरा रिवर ओडिशा? ऋषिकुल्या दिख रही है? ऋषिकुल्या रिवर, ऋषिकुल्या रिवर, उसके नीचे वंशधरा, उसके नीचे नागावली। देखो ओडिशा के रिवर्स हैं, ऋषिकुल्या, वंशधरा एंड नागावली। ऋषिकुल्या, वंशधरा, नागावली दिख गई? मुझे बात बताओ, ओशन से ही, ओशन में ही जाएगी ना? नीचे देखो कौन सी एटलिस है ये? कौन सा एडिशन? 36 एडिशन। ये क्या देखो यहाँ पे, ये कौन सी है? हाँ, ये रिवर्स के नाम नहीं लिखे हुए आपके इसमें। ऋषिकुल्या, वंशधरा एंड नागावली। यहाँ पे देखो, चिलिका लेक के पास है। यस, ये कौन सी? ये कौन सी है? ये है ना, ये हाँ, यहाँ पे ये तीनों है। हाँ, ऋषिकुल्या, 3 रिवर्स दिख रही है ओडिशा में। कैन यू सी रिवर्स इन ओडिशा? चिलिका लेक के नीचे से वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है, चिलिका लेक के पास ही ये सब रिवर्स है। दिस इज योर चिलिका लेक, इसके यहाँ पे यू हैव वंशधरा, ऋषिकुल्या, वंशधरा एंड नागावली। ऋषिकुल्या, वंशधरा एंड नागावली, दिस इज चिलिका लेक। चिलिका लेक, ऋषिकुल्या, वंशधरा एंड नागावली। नहीं, महानदी तो काफी ऊपर है ना, महानदी तो चिलिका के ऊपर है। नहीं, ये अलग रिवर्स हैं, लोकल रिवर्स हैं। these are not distributaries of Mahanadi. They're not distributaries of Mahanadi. Mahanadi is above Chilika. Mahanadi is above Chilika river. ऋषिकुल्या, नागावली, नागावली, ऋषिकुल्या. Anybody, have you heard these in news? Olive ridley turtle सुना है? Olive ridley turtle कहाँ पे hatch करते हैं? Along the Chilika Lake and these rivers. ऋषिकुल्या is a mass nesting site of olive ridley turtle. What do you call that mass nesting sites? अरीबडास, अरीबडास बोलते हैं उसको। अरीबडास पे आपके, यहाँ पे आपके इन सब के आसपास, भीतरकनिका के आसपास, राइट, भीतरकनिका के आसपास you have this. Look at the coast of Odisha. Here, these are the mouths of Mahanadi. यहाँ पे आपकी ये है, नीचे लिखने के नीचे, ठीक है। फाइन, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो वंशधरा भी देख लिया, ठीक है। पेन्नार बाद में देखेंगे, पेन्नार वी विल सी इट लेटर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू दी रिवर्स। वी वर डूइंग एट व्हाट? वी वर डूइंग दी रिवर्स। अरीबडास, जो मास नेस्टिंग होती है उसका नाम होता है उस अरीबडास, मास नेस्टिंग हैचिंग जो होती है उसको अरीबडास कहते हैं। आगे बढ़े, क्या देखा अब तक? वी सॉ इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वी मूव्ड टू यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वी मूव टू नर्मदा एंड तापी, फिर हमने गोदावरी देखा। गोदावरी के बाद हम क्या करेंगे? कृष्णा, ठीक है, कृष्णा करें। कृष्णा रिवर की बात करते हैं। सो गोदावरी में वी सॉ दी गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मूविंग टुवर्ड्स कृष्णा रिवर। इफ यू लुक एट कृष्णा रिवर हियर, दिस इज योर कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा ओरिजिनेट करती है, गोदावरी ओरिजिनेट करती है त्रिंबकेश्वर से, कृष्णा ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से।
वो त्र्यंबकेश्वर से, ये महाबलेश्वर से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर। कृष्णा सबसे बड़े गॉड माने जाते हैं, महागॉड महाबलेश्वर से कृष्णा आती है, महाबलेश्वर। देन इट ऑल्सो, वो भी महाराष्ट्र में आती है। कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे, यहाँ पे है घटप्रभा, तुंगभद्रा। यू हैव 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, तुंगभद्रा, घटप्रभा एंड मल्लप्रभा। तीनों प्रभा है, देखो घटप्रभा, तुंगभद्रा और मल्लप्रभा। घटप्रभा, तुंगभद्रा एंड मल्लप्रभा, these are the tributaries of Krishna. Tributaries of Krishna on the right bank. On the right bank you have Ghatprabha, Tungabhadra and Mallaprabha. To the left bank you have Bhima, Musi, Bhima और Musi. Bhima आपकी महाराष्ट्र में, ये वाली भीमा, और मूसी आपकी हैदराबाद में। This is the Musi. So you have भीमा एंड यू हैव मूसी। यहाँ पे क्या आपकी घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा। ये आपकी मल्लप्रभा है, ये आपकी तुंगभद्रा है, और घटप्रभा थोड़ा और ऊपर है। घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। घटप्रभा, मल्लप्रभा, तुंगभद्रा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी कृष्णा की। टू द राइट, टू द लेफ्ट यू हैव भीमा एंड मूसी। भीमा रिवर को चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। एक और रिवर है जिसको चंद्रभागा कहते हैं, वो है चेनाब। और भीमा को भी क्या कहते हो? चंद्रभागा। भीमा is the longest tributary of Krishna. Bhima is the longest tributary of the Krishna. So what I'm looking at Krishna River. Krishna River में I saw Krishna originates at Mahabaleshwar of Maharashtra. Krishna की राइट में आपके जो साउथ से आ रही है वो है प्रभा, घटप्रभा, मल्लप्रभा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। फिर उसके बाद वी सॉ दैट उसकी लेफ्ट पे है भीमा और मूसी। मूसी पे हैदराबाद है। भीमा बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। भीमा को आप चंद्र और भागा भी बोलते हो, राइट। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक कोयना भी है, कोयना रिवर भी है, वो कृष्णा को ऊपर ज्वाइन करती है। ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा में ये भीमा है, तो यहाँ पे आपकी कोयना ज्वाइन करती है। सबसे पहले कोयना होती है, कोयना के बाद ही जब भीमा वगैरह उसको मिलते हैं तो उसको कृष्णा बोलते हो। जैसे ब्रह्मपुत्र में हुआ, जैसे इंडिया में उसको इनिशियल क्या कहते हो? दिहांग कहते हो। फिर दिबांग और लोहित मिलती है तो ब्रह्मपुत्र कहते हो। वैसे ही कोयना इनिशियली मिलती है, उस पे जब फिर बाद में भीमा वगैरह सब मिलने लगेगी तो उसको कृष्णा बोलने लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाली जो ट्रिब्यूटरी है वो है कोयना। महाबलेश्वर पे जब कृष्णा राइज करती है तो उसको कोयना बोलते हैं। फिर धीरे धीरे उसके बाद उसको कृष्णा बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट, ठीक है, हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी है। हेडवर्ड जहां से स्टार्ट होती है वहां पे पहले कोयना होती है। अच्छा, भीमा की बात करो, भीमा इज लेफ्ट बैंक, भीमा इज अ लेफ्ट बैंक, ठीक है। भीमा इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, फाइन। ये एक्चुअली यहां से आपकी कृष्णा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये कृष्णा स्टार्ट हो रही है, पहले उसको कोयना बोलोगे, फिर कृष्णा बोलोगे, और उसको लेफ्ट में आपको भीमा मिलेगी, और लेफ्ट में आपको मूसी भी मिलती है। राइट में आपकी घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा मिलती है। कृष्णा पे कुछ डैम्स, सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो कृष्णा पे है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो कृष्णा पे है वो है आपका नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। और उसी के नाम पे ही आपका टाइगर रिजर्व भी है, नागार्जुन श्री सालेम टाइगर रिजर्व। वो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में आता है, नागार्जुन श्री सालेम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्री सालेम टाइगर रिजर्व और नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। कृष्णा पे जो मूसी है, मूसी पे हैदराबाद है, और कृष्णा पे खुद का आपका विशाखापट्टनम, सॉरी विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा इज देयर ऑन दी कृष्णा। ये कृष्णा था। वी लुक्ड एट रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा। आई लुक्ड एट नर्मदा एंड आई लुक एट तापी। आज मैंने कहां से स्टार्ट किया? स्टार्टेड ऑफ विथ नर्मदा, हाँ, ब्रह्मपुत्र, देन नर्मदा, देन तापी, देन कृष्णा, देन गोदावरी, ठीक है। एक बार क्विकली बोल रही हूँ, हाँ, महानदी भी आएगी, सब आएगी, रुक जाओ, ठीक है। अभी पहले एक बार रिवाइज करूं, आप अपने मन में सोचें। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स एट चिमांगयुंगनुंग ग्लेशियर, यार्लुंग सांगपो आती है, इंडिया में नामचाबरवा के बाद एंटर करती है। एंटर करने के पहले उसको दिहांग बोलते हैं। उसको 2 इंपॉर्टेंट रिवर आके मिलती है, दिबांग एंड लोहित। उसके बाद आप ब्रह्मपुत्र कहते हो। उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र को जो ऊपर से ज्वाइन करती हैं वो सारे जो असम वाली रीजन है, मनास, मनास नेशनल पार्क भी है,
मनास, you have संकोश, कामेंग, ठीक है, you have all these as the tributaries. जो नीचे से आपके ब्रह्मपुत्र को मिल रही है वो है आपकी बोरी दिहिंग एंड कोपिली एंड बोरी दिहिंग. ऊपर से आपकी जो रिवर नहीं बोला था, कामेंग नहीं बोला मैंने, कामेंग, संकोश, सुबनसिरी, तीस्ता ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाके मिलती है. अगर तीस्ता की बात करें तो तीस्ता ओरिजिनेट करती है सोलामू ग्लेशियर या चोलामू ग्लेशियर, या तो फिर आपका इट टॉक्स अबाउट जेमू ग्लेशियर आती है. तीस्ता की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रंगित रिवर. तीस्ता जॉइंस ब्रह्मपुत्र एंड इन बांग्लादेश, राइट. एंड तीस्ता पे आपका है तीस्ता बैरेज, तीस्ता पे आपका है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. तीस्ता सिक्किम और वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ फ्लो करती है. The source of Teesta is not same as that of the Brahmaputra. Then we moved on to understanding the Narmada. I said Narmada originates in Amarkantak, somewhere in MP. From MP moves towards Maharashtra, moves towards Gujarat. Narmada drains at Gulf of Khambat. Narmada is flowing through a rift valley. It flows through rift valley. Narmada has an important tributary called as Tawa. Tawa is a tributary of Narmada. इसके बाद हम आते हैं तापी. तापी ओरिजिनेट्स एट बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी. एमपी से आती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आती है गुजरात. ये भी गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करती है. ये महाराष्ट्र और एमपी के पास बॉर्डर बनाती है तापी. उस पे आपकी मेलघाट टाइगर रिजर्व है या मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एंड उकई डैम है आपका तापी पे. तापी हैज अ उकई डैम कॉल्ड एज उकई. देन वी मूव्ड ऑन टू कृष्णा, नहीं पहले गोदावरी. गोदावरी पे हम आए. गोदावरी राइज करती है त्रिम्बकेश्वर से, महाराष्ट्र से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक फ्लो करती है. गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज टुवर्ड्स जो नॉर्थ में आ रही हैं वो है आपकी दूधना, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू. ये आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है. वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा तीनों मिला के प्रणहिता बनाते हैं. राइट में गोदावरी में आपकी प्रवरा और मंजरा. दिस इज दी गोदावरी. गोदावरी के बाद ट्रिब्यूटरीज हमने एक और साथ में देखी. उड़ीसा के पास हमने कुछ रिवर्स देखे. तो हमने देखा ऋषिकुल्य, वंशधरा एंड नागावली. देन वी मूव टू कृष्णा. इन कृष्णा आई सेड इट राइजेस इन महाबलेश्वर. महाबलेश्वर में महाराष्ट्र में राइज करने के बाद ये भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ जाती है. कृष्णा की आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हमने देखी. जैसे स्टार्ट होती है तो कोयना बोलते हैं, फिर कोयना में भीमा मिलती है, फिर मूसी मिलती है ऊपर से. भीमा बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है. भीमा को चंद्रभागा भी बोलते हैं. मूसी पे आपका हैदराबाद है. नीचे से जो ट्रिब्यूटरी मिल रही है वो प्रभा है. घट प्रभा, मल्ल प्रभा और तुंगभद्रा. ठीक है, ये तीन है. कृष्णा पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, दैट इज श्री सालेम नागार्जुन टाइगर रिजर्व. श्री सालेम नागार्जुन डैम भी है और विजयवाड़ा सिटी आपकी कृष्णा पे है. ये देख लिया कृष्णा. अब इसके बाद दिस इज व्हाट वी सीन. इस कृष्णा के नीचे आ जाएगी आपकी कावेरी. ये कृष्णा है, ठीक है, यू कैन सी कृष्णा. दिस इज सी, दिस आई सेड इज द कोयना रिवर. कोयना आ रही है, कोयना उसके बाद देखो कृष्णा बनती है. कृष्णा को भीमा यहाँ पे मिलती है. भीमा बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है. ये कृष्णा है. यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास आप देखोगे श्रीसालेम प्रोजेक्ट है या नागार्जुन श्रीसालेम डैम है. नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये श्रीसालेम प्रोजेक्ट है. ये टाइगर रिजर्व था बहुत बड़ा तेलंगाना और इसके बीच में, आंध्र प्रदेश के बीच में. नागार्जुन इस तरफ चला गया, श्रीसालेम इस तरफ आ गया. नाउ यू कैन लुक एट द ट्रिब्यूटरीज. यहाँ पे है आपकी घट प्रभा, ये है मल्ल प्रभा और ये है आपकी तुंगभद्रा. अगर आपने तुंगभद्रा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड मिडिवल हिस्ट्री? मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा है क्या? मिडिवल हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर एक था विजयनगर एम्पायर, पढ़ा. विजयनगर एम्पायर लड़ते थे अपने बाजू के नेबरिंग रीजन से किसके ऊपर, और उनका क्या रिवर था जो डिवाइड करता था उनके और उनके इसको. बेसिकली विजयनगर बहुत बड़ा एम्पायर था. विजयनगर, हाँ, विजयनगर के कैपिटल्स कौन सी रिवर पे थे? हाँ, विजयनगर का कैपिटल हम्पी था. हम्पी कौन सी रिवर पे था? हम्पी इस रिवर पे था. ये तुंगभद्रा रिवर है ना, इस सर आपका विजयनगर का कैपिटल था. विजयनगर का जो कैपिटल है हम्पी, वो तुंगभद्रा पे था. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में पूरा एक जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है. लोटस टेम्पल, महानवमी, दिब्बा, वहां पे आपका ये भी दिखाया है. आपके हॉर्सेस जो थे, they have shown it in the themes in the world, in the themes in Indian history. विजयनगर पे दिखाया और उसमें ये भी दिखाया कि विजयनगर की जब आप एंटर करते हो विजयनगर में तो ऐसे 7 आपके गेट्स थे.
7 गेट्स, और हर गेट के बीच में आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड थी कि कभी कुछ अटैक हुआ भी तो आपका फूड सिक्योरिटी अंदर के अंदर ही मिल जाना चाहिए, विद इन द पैलेस, विद इन द किंगडम। हाँ यस, विद इन द किंगडम आपके 7 गेट्स थे, और उनका जो कैपिटल था वो आपका था तुंगभद्रा पे विजयनगर का कैपिटल था, हम्पी, दैट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। ये हमने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, कावेरी पे आते हैं। तो if I look at the map of rivers, what have I done? I have done Godavari, I have done Krishna. Now I'm moving to Kaveri, then I can do Vaigai. तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई होता है ना, तो अब हम कृष्णा पे जा रहे हैं। if I go back to Krishna here, sorry, if I go back to Kaveri, हमने एक बार क्वेश्चन देखा था साइलेंट वैली वाला कि साइलेंट वैली से पास होती है कि नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन वी हैड सीन। अब देखोगे ये आती है कावेरी, आती है यहाँ से, कावेरी इज कमिंग फ्रॉम हियर, कावेरी इज मेजरली फ्लोइंग बिटवीन व्हाट, केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु के बीच में मेजरली आपकी कावेरी फ्लो होती है। कावेरी, सॉरी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, आई एम सो सॉरी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से आती है। ये आपकी बाबा बुडान हिल्स है, ठीक है, बाबा बुडान हिल्स, और यहाँ पे आपकी वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट से आपकी कावेरी आ रही है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स से आती है, ब्रह्मगिरी हिल्स, तल्ल कावेरी बोलते हैं इसको। जब कावेरी स्टार्ट होती है उसको तल्ल कावेरी कहते हैं, वो आती है आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से, आती है कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यू हैव हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। और भी ट्रिब्यूटरीज आप देखोगे, काबिनी, भावनी, नोयल, दीज आर ऑल दी, मोयार, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी कावेरी की। कृष्णराज सागर डैम, कृष्णराज सागर डैम किस पे है, कावेरी पे। कृष्णराज सागर डैम कृष्णा पे नहीं है, कृष्णराज सागर डैम कावेरी पे है, ठीक है। तो हम कावेरी पे देखें, स्टार्ट हो रही है इसकी तल्ल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स पे, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जितनी भी लड़कियों के नाम होंगे ना कावेरी की सारी ट्रिब्यूटरीज वही हैं, अमरावती, हेमवती, काबिनी, भावनी, नोयल, शिमशा, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। डैम्स इस पे कौन से, कृष्णराज सागर डैम या कृष्ण सागर डैम, मेत्तूर डैम, भवानी पे भवानी सागर डैम। 2 फॉल्स हैं कावेरी पे, एक है आपका शिव समुद्रम फॉल्स, होंगे निकल फॉल्स, 2 फॉल्स हैं, शिव समुद्रम और होंगे निकल, और 2 आइलैंड्स हैं, श्रीरंगम आइलैंड्स एंड शिव समुद्रम आइलैंड्स। अगर कावेरी को याद करना हो तो आपको चोला एम्पायर याद कर सकते हो। चोला एम्पायर वाज बेस्ड ऑन कावेरी, कावेरी पे ही था चोला एम्पायर। उनका एक फेमस आइलैंड था, दैट वाज तिरुचिरापल्ली आइलैंड्स, ये भी कावेरी पे ही है, लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली किस पे है, कावेरी पे। कावेरी राइज करिए ब्रह्मगिरी हिल्स पे, कर्नाटका तमिलनाडु पे फ्लो करती है। 2 इस पे फॉल्स हैं, शिव समुद्रम और होंगे निकल। इस पे कृष्णराज सागर डैम है, ओके, भावनी सागर डैम है, मित्तूर डैम, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या था आपका कावेरी। So what did we do? We did Godavari, Krishna and Kaveri. Moving on, बताएं, ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पेरियार को छोड़ देते हैं, वेगई को छोड़ देते हैं, ये हमने देख लिया, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया, तीस्ता हमने देख लिया, तीस्ता हमने देख लिया, ओके, समझा सबको कावेरी का। नाउ अब इफ यू लुक एट what now we are looking at the eastern, what have we done, we did Indus and tributaries, we did Brahmaputra and tributaries, we did Ganga, we did Yamuna, we started off with, we did Narmada, we did Tapi, we did Godavari, we did Krishna, we did Kaveri, ठीक है। अब हम ये वाली रिवर्स पे आते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेटो के, देखो ये चिलिका लेक है, चिलिका लेक के नीचे से आपका वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाता है, चिलिका लेक के नीचे से आपका वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो, ईस्टर्न घाट स्टार्ट होता है, चिलिका लेक के नीचे से ईस्टर्न घाट स्टार्ट।
चिलिका लेक के ऊपर तक ना आपका एक प्लेटू है। क्या प्लेटू है ये? छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू की रिवर्स देखते हैं, या जो रिवर ईस्टर्न घाट्स के ऊपर है, जो रिवर ईस्टर्न घाट्स के ऊपर है, उन रिवर्स को देखते हैं। These are the rivers above the eastern ghats. What are the rivers above the eastern ghats? These are the river above the eastern ghats. कौन सी है? दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी। दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी और महानदी। और हमने महानदी के नीचे रिवर्स देख ली थी, ऋषिकुल्य, वंशधरा एंड नागावली। हमने देखी थी यहाँ पे रिवर्स, छोटी छोटी सी उड़ीसा में ऋषिकुल्य, वंशधरा और नागावली, ये हमने देखा था। अब हम ये रिवर्स देखते हैं, इसको याद कैसे किया था? द सु, मतलब द सु, दामोदर, सुवर्ण रेखा, बेटर, ब्रह्मा, महान, बेटर, ब्रह्मा, महान, दामोदर, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी और महानदी। दसु, बेटर, ब्रह्मा, महान। तो दामोदर, सुवर्ण रेखा, बेटर, ब्रह्मा, महान, सबके फर्स्ट इनिशियल लेटर्स को ही याद किया था। दामोदर, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महान नदी। एक एक रिवर को देखते हैं, दामोदर से देखते हैं। आपको याद है व्हाट वाज द सॉरो ऑफ बिहार? कोसी। सिमिलरली द सॉरो ऑफ बंगाल इज दामोदर। दामोदर इतना ज्यादा हेवी फ्लडिंग करते थे वेस्ट बंगाल में दैट इट वाज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल। कैसे रोके इन फ्लडिंग को? तो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द दामोदर वैली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। दामोदर वैली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट में क्या था? ये सब लिखा हुआ है, डीवीसी दामोदर वैली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने सोचा कि बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं, लेट अस मेक बिग बिग डैम्स एंड लेट अस कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं, बड़े डैम्स बनाते हैं। तो हमने बड़े डैम्स बनाए। हमारा इंस्पिरेशन थे यूएस में एक रिवर है कॉल्ड एज टेनेसी रिवर, उसमें भी बहुत फ्लड्स आते थे। तो यूएस ने बड़े डैम बनाए, तो हमने भी बड़े डैम बनाए, नॉट रियलाइजिंग कि यूएस कितना कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, कितना उनके पास पैसा है और कितनी उनके पास इंजीनियरिंग मार्वल है। बट हमारे पास ऐसा नहीं था, बट हमने फिर भी किया। उसके कई सालों तक फ्लडिंग रुकी गई, बट उसके बाद वापस से फ्लड्स, डैम्स के आपके प्रॉब्लम आने लगे। डैम्स की प्रॉब्लम क्यों आने लगे? क्योंकि डैम्स मेंटेन नहीं होते हैं प्रॉपरली, हम मॉनिटर नहीं करते हैं वाटर लेवल को, तो काफी सारे डैम्स में प्रॉब्लम भी आई है। What are we looking at? We were looking at this one, Damodar Valley Corporation and Damodar River. So looking at दामोदर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे हमने डैम बनाए थे। So दामोदर इज ओरिजिन इज छोटा नागपुर प्लेटो, ये सब छोटा नागपुर प्लेटो से आ रही है, छोटा नागपुर प्लेटो। दामोदर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेटो into two part. The northern part is called as हजारीबाग प्लेटो and the southern is called as रांची प्लेटो। ठीक है, हजारीबाग प्लेटो एंड रांची प्लेटो। जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी दामोदर की, द ट्रिब्यूटरीज आर बराकर एंड कोनार। इस पे आपके डैम्स हैं, तिलैया डैम, मैथोन डैम, पांचेत डैम, कोनार डैम। हमने 4 मेजर डैम्स बनाए थे डीवीसी के अंदर, तिलैया, मैथोन, पंचेत एंड कोनार। तो कोनार जो ट्रिब्यूटरी है उस पे कोनार डैम, बराकर जो ट्रिब्यूटरी है उस पे मैथोन डैम, और दामोदर, मेन दामोदर पे हमने बनाए थे, मेन दामोदर पे हमने, ये देखो ये बराकर ट्रिब्यूटरी है, तो बराकर पे हमने तिलैया डैम बनाया। मेन दामोदर पे हमने आपका पंचेत डैम बनाया, राइट, पंचेत डैम बनाया। कोनार पे आपने, कोनार रिवर पे आपने कोनार डैम बनाया। You have the Konar dam on the Konar river. So what are we looking at? We were looking at Damodar. Damodar is called as the sorrow of Bengal. दामोदर की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, बराकर और कोनार। कोनार पे है कोनार डैम, दामोदर पे है आपका तिलैया डैम एंड मैथोन डैम। नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद। बराकर पे है आपका मैथोन एंड तिलैया, कोनार पे है कोनार डैम, और एक ही डैम है दामोदर पे, दैट इज पंचेत डैम। दामोदर पे एक ही डैम है, पंचेत डैम। हमें कौन सी रिवर्स पे कौन सा डैम है याद करना वैसे भी जरूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। दामोदर वैली कोऑपरेशन, वेस्ट बंगाल, दिस इज देयर इन वेस्ट बंगाल, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डीवीसी प्रोजेक्ट था। डीवीसी पे 4 नाम डैम के कौन सी रिवर पे छोड़ देते हैं, कुनार, पंचेत, तिलैया और मैथोन। ठीक है, तिलैया, मैथोन, पंचेत, कुनार डैम, दिस इज योर दामोदर रिवर। ठीक है,
what were we doing? We were doing at the rivers here in the Chota Nagpur plateau. He said दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी और महानदी. ये सब रिवर्स कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास की रिवर है. 5 रिवर, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी और महानदी. छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है. स्वर्णरेखा भी छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है. सारी रिवर्स ऑलमोस्ट छोटा नागपुर प्लेटो से ही ओरिजिनेट होती है, वहां पे फ्लो करने लगती है. ठीक है. बैतरनी भी आपकी छोटा नागपुर प्लेटो से फ्लो करती है, भीतर कनिका से पास करती है. ब्रह्मणी भी आपकी छोटा नागपुर से फ्लो करती है और ऐसे पास करती है. तो 5 रिवर छोटा नागपुर प्लेटो से फ्लो करती है. इतना भी अगर हमने पढ़ लिया तो काफी है. We have done this much, then it is good to go. दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी और महानदी सब छोटा नागपुर के पास से ही आती है. इन 5 रिवर में से 2 रिवर जो इंपॉर्टेंट है, एक है दामोदर, एक है महानदी. एक है सबसे ऊपर, एक है सबसे नीचे. दामोदर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दामोदर पे डीवीसी है, दामोदर वैली कोऑपरेशन. उस पे आपने डैम्स बनाए थे. कौन से? पंचेत, तिलैया, मैथौन और बराकर. हाँ, कोनार डैम. कोनार डैम हमने बनाया था. 4 हमने डैम बनाए. महानदी पे आ रही हूं मैं, लास्ट वाली. दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी से महानदी पे आई मैं. महानदी जो है ये वाली रिवर है. सी, महानदी रिवर फ्लोज थ्रू 2 स्टेट्स मेजरली. इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में आपकी महानदी फ्लो होती है. महानदी रिवर की बाकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओंग, तेल, इब, मांड. याद रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं. महानदी पे एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व. ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये व्हाइट टाइगर, यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं. ये कलर ब्लैक एंड व्हाइट बनाया नहीं है, ये एक्चुअली व्हाइट टाइगर्स ही हैं. आपके इसमें भी दिख रहे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहे होंगे. ठीक है. तो ये व्हाइट टाइगर मिलते हैं यहाँ सतकोसिया में. ठीक है. वहां पे भी देख सकते हो, इफ यू वांट टू सी, वहां पे दिख रहा है. तो दिस वाज अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया. हमने रिवर्स कंप्लीट कर दिया. आई डोंट थिंक इसके आगे कोई रिवर पढ़ने की जरूरत है. इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है. बताएं. ब्रह्मपुत्र, बेसिकली ब्रह्मपुत्र आती है, ये ब्रह्मपुत्र आती है, यारलुंग सांगपो बोलते हैं, तिब्बत से आती है. उसका जो ओरिजिन होता है वो चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर होता है. चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है. तिब्बत में उसको यारलुंग सांगपो कहते हैं. इंडिया में टर्न होती है, नामचा बरवा के पास टर्न होती है. अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो होती है. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो होती है. इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दिहांग, दिबांग, लोहित. ना देखो, ये ब्रह्मपुत्र है, चिमांग युंगडुंग पे आई, यारलुंग सांगपो बोलते हैं. इंडिया में एंटर करते हैं तो दिहांग बोलते हैं, जैसे इंडिया में एंटर किया. यहाँ पे दिबांग होती है, यहाँ पे लोहित होती है. मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र बनती है और ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है. ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? आप तीस्ता देखोगे जो बांग्लादेश में मिलती है, संकोश, मनास, कामेंग, सुबानसिरी. संकोश, मनास, कामेंग एंड सुबानसिरी, ये सब अरुणाचल प्रदेश और असम के पास ही. संकोश, मनास, कामेंग, सुबानसिरी. नीचे है आपकी धनसिरी और कोपिल, यहाँ पे बांग्लादेश. तीस्ता ज्वाइन करती है बांग्लादेश में. संकोश, मनास, कामेंग, सुबानसिरी. नीचे से आपकी दिहांग, बुरी दिहिंगे और कोपिली. ठीक है. इज इट फाइन? दिस इज अबाउट द ट्रिब्यूट रिवर्स. We did Ganga river system, Indus river system, Yamuna and the tributaries, Narmada, Tapi, Krishna, Godavari, Kaveri. हमने छोटा नागपुर में देखा दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी एंड महानदी. ठीक है. अब इसके आगे जो भी होगा छोड़ के आएंगे. इतनी रिवर्स पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कर लिया था, ये कल कर लिया था. ये क्वेश्चन देखना आप. I was solving this question 2019 का, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था. तो अब मैंने ये पेपर किया था. दिस वाज द लास्ट पेपर आई हैड गिवन इन यूपीएससी कंडीशंस. तो जब ये पेपर देखा था तो आई वाज लाइक, इतनी रिवर पढ़ ली है, उसके बाद भी अलग क्वेश्चन आ रहा है. तो आई चेंज्ड माय फोकस. आई डिड नॉट लुक एट दिस क्वेश्चन एज द रिवर एंड प्लेसेस. मैंने बोला अगर ये अगर मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन होता और जितना मेरे पास नॉलेज है
मैं उस नॉलेज से सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे बाकी याद ही नहीं आ रहे थे। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी थोड़ा बहुत सुना था, पक्का याद नहीं था। मैंने सोचा चलो ठीक है, फोकस चेंज करते हैं, और इसको मैंने मिडिवल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया था। पॉइंट ये है कि सिर्फ ज्योग्राफी मत सोचना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी नॉलेज याद आता हो उधर लगा लेना। अब जितना भी नॉलेज है ना, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करो। बताएं। हाउ मेनी फॉर ए? क्या लॉजिक लगाया? हम्पी तुंगभद्रा पे, और ये अगर पता था, और इतना भी पता था कि मलप्रभा थोड़ा सा नॉर्थ में है, या मलप्रभा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा का, पर वो मलप्रभा नहीं है, तुंगभद्रा है, तब भी आंसर आ गया था। तभी मैंने वहां पे भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे जो पंढरपुर कह रहा है ना, यहाँ पे पंढरपुर चंद्रभागा कह रहा है। ये जो फेमस प्लेस है ये महाराष्ट्र में, तो ये चंद्रभागा पता है कौन सी है? ये भीमा वाली है। ये चंद्रभागा चेनाब वाली नहीं है। और हमने तिरुचिरापल्ली और कावेरी तो देखा, तिरुचिरापल्ली और कावेरी वी हैव ऑलरेडी। हाँ, अब पता नहीं, अब हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि कौन सा है। हाँ वही तो, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हमने हिस्ट्री देखा था। आई वाज लाइक यार ज्योग्राफी में तो आ नहीं रहा, ज्योग्राफी में है ही नहीं। ठीक है, तो हिस्ट्री देखेंगे। आई होप हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हो। ये देख लिया हमने, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। Which of the following rise above from the Eastern Ghats? बताओ, आंसर बताओ। डी, डी, बी। How many for A? How many for A? How many for B? How many for C? How many for D? पढ़ो। अभी यही क्वेश्चन है। बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है कि ईस्टर्न घाट के ऊपर से कौन सी है। फ्रॉम नहीं, राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स नहीं, सॉरी सॉरी, राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। जो अबव यानी वो जो क्वेश्चन वाला है, विच ऑफ द अबव, यानी जो 4 रिवर दिए ईस्टर्न घाट से कौन सी निकलती है। ब्राह्मणी ईस्टर्न घाट से आती है क्या? छोटा नागपुर प्लेटो से। सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर से आती है। हमने 4 रिवर्स देखी ना, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी और महानदी, ये सब छोटा नागपुर से आती है। तो ईस्टर्न घाट से कौन सी आती है? नागावली और नागावली और वंशधरा। देख लिया था ना, ऋषिकुल्य, वंशधरा एंड नागावली। ऋषिकुल्य, वंशधरा, नागावली। सो द आंसर हियर इज बी, आंसर हियर इज बी। बाकी तो दोनों ईस्टर्न घाट्स के, नागावली और वंशधरा
We have already seen this, Nagavali and Vamsadhara. चिलिका लेक के नीचे से आपका ईस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आंसर है नागावली और वंशधर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस हियर, ये क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या हो गया, व्हाट्स मेकिंग यू लाफ, बताओ। क्वेश्चन पढ़ो। गांडीकोटा कैनियन of South India was created by which one of the following rivers? Kaveri, Manjira, Pennar and Tungabhadra. कैनियन समझ आता है, वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली बनाने, कोई माउंटेन को कट करेगी और वी शेप्ड वैली बनाएगी, कोई माउंटेन को कट करेंगे और वी शेप्ड वैली बनाएगी। तो कौन सी रिवर है जो गांडीकोटा कैनियन बनाता है और कौन से माउंटेन पे बनाता है, ये भी हमको जानना चाहिए। इसका आंसर है पेन्नार रिवर। दिस वाज एक्चुअली गिवन इन योर तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ था कि गांडीकोटा कैनियन कौन सी रिवर बनाती है, तो आपकी पेन्नार रिवर बनाती है, ये गांडीकोटा कैनियन में आपका वी शेप्ड वैली बनाती है, इट मेक्स वी शेप्ड वैली इन दी गांडीकोटा कैनियन। सो दिस इज योर पेन्नार रिवर, दिस इज दी पेन्नार रिवर। सो गांडीकोटा कैनियन, कुछ चीजें मार्क कर लो प्लीज, सम ऑफ यू, ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस हियर, कुछ चीजें आप मार्क कर लें आपके इसमें। यू हैव कैनियन ऑफ गांडीकोटा, पेन्नार रिवर बनाती है, आंध्र प्रदेश में बनाती है, इट इज फॉर्मिंग एट एर्रामला हिल्स, एर्रामला हिल्स को कट करती है रिवर, एर्रामला हिल्स को कट करती है रिवर, और उसके बाद आपका गांडीकोटा कैनियन बनाती है। इस कैनियन को आप हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हो, अब तक हमें इसके बारे में पता नहीं था, so it is also considered as a hidden grand canyon of India. Okay, and ये क्वार्ट्ज से बना है, लार्जेस्ट केव सिस्टम भी है, बेलम केव्स है यहाँ पे, कृष्णदेवराय ने, राइट, कृष्णदेवराय ने ये बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक लेक बनाया हुआ है, कृष्णदेवराय ने ये लेक बनाया हुआ है, बेलम केव्स हैं। तो आपकी कौन सी रिवर है, कौन से माउंटेन को कट कर रही है और कौन सा कैनियन बना रही है। सो यू हैव पेन्नार रिवर cutting through the Erramala hills forming the Gandikota canyon, यहाँ पे आपके बेलम केव्स भी हैं। Is it fine? Fine, okay. So I will move on. एक काम करें, please open your atlas, open the atlas, open the map of Odisha and Andhra Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh का आप मैप खोलें। हाँ, ओपन दी मैप ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट रिवर्स देखें, लुक एट द इंपॉर्टेंट रिवर्स। यस, स्टार्ट लुकिंग एट द इंपॉर्टेंट रिवर्स। ओडिशा से आप इंपॉर्टेंट रिवर्स देखना स्टार्ट करें। यू कैन लुक एट द रिवर्स लाइक वंशधरा, ऋषिकुल्य, नागावली, दिख रही है रिवर्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाएं, ठीक है, वंशधरा, ऋषिकुल्य, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी कृष्णा के नीचे देखना स्टार्ट करो, गोदावरी और कृष्णा के नीचे देखना स्टार्ट करो, पलेरू, पनेरू, दिख रही है सब रिवर्स, पलेरू, पनेरू, पलार, कैन यू लुक एट द रिवर्स। ईस्टर्न घाट्स देखो, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है, हाँ, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है और उस पे रिवर्स कट कर रही हैं, द ईस्टर्न घाट्स आर कट बाय द रिवर। तो कौन सी रिवर्स हैं ईस्टर्न घाट्स की, देख लो। अभी तक हमने ईस्टर्न घाट्स की रिवर में 2 रिवर देखी ना, नागावली, ऋषिकुल्य, वंशधरा, और भी ईस्टर्न घाट्स की रिवर देखो, और भी ईस्टर्न घाट्स की आप रिवर देखें। The Eastern Ghats rivers, Godavari, Krishna,
पलेरू, पनेरू, पलेरू, पनेरू, पलार, पोनियार दिख रहा है क्या? पनेरू, पलेरू, पलार। आपको पूरी रिवर्स को मतलब यू हैव टू लुक एट ओडिशा, यू हैव टू लुक एट आंध्र प्रदेश, यू आल्सो हैव टू लुक गो बैक एज साउथ एज तमिलनाडु, एज फार एज साउथ एज तमिलनाडु। सारी रिवर्स एक बार देख लो, ओडिशा भी देखो, आंध्र प्रदेश भी देखो और तमिलनाडु भी देखो। पलार, वेलार, पलार, पलार, पोनियार, वेलार, कावेरी, पन्नेरू, पन्नेरू देखी, पन्नेरू देखी, ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, वंशधरा, वंशधरा देखी, ऊपर नागावली और वो आएगी ऋषिकुल्य, ओडिशा के पास। नहीं है ऋषिकुल्य, नागावली नहीं है यहाँ पे। ऋषिकुल्य, वंशधरा, हाँ तो नागावली यहाँ पे ये बना लो, नागावली। ठीक है, अभी काम करें, अभी काम करें। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट, ऑल ऑफ यू लिख लो एक जगह पे, हेडिंग लिखो, लिखो हेडिंग, द रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, लिखो रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। हाँ आराम से आ जाएगा, इतना इतनी थोड़ी रिवर्स, रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वंशधरा, 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 ऋषिकुल्य, वंशधरा, ऋषिकुल्य, नागावली, रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, वंशधरा, नागावली, ऋषिकुल्य। You have Penneru, Penneru, Palar, Godavari, Krishna, yes. कौन सी छूटी बताओ? पोनियार छूटी, हाँ। मलेरू, मनेरू लिखो, जितनी रिवर्स आती है उतनी लिखो, आपने मार्क किया ना, लिखो। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, पनेरू, पलार, मनेरू, पोनियार, राइट। अजीब से नाम है, अब एटलीस्ट कुछ तो याद होंगे, कुछ याद रहेंगे, कुछ अजीब लगेंगे। मनेरू भी है, मनेरू भी है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में वंशधरा के बाद एक तो थी हमने नागावली देखी, ऋषिकुल्य, ऋषिकुल्य, नागावली, वंशधरा, ऋषिकुल्य, वंशधरा, नागावली। ऑल ऑफ यू विथ मी, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते, सुनो, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द रिवर सिस्टम। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स के रिवर्स, वेस्टर्न साइड में बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स हैं, जोग है, जुआरी है, मांडोवी है,
आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम बना हुआ है इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर वेलार, हाँ वेलार ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर, if you have your NCERT, you have the rivers here. This is drainage system. On drainage system, can you see this page number 29? On page number 29, यहाँ पे देखोगे साबरमती, माही, धंधर, काली नदी, शारावती, भरतपूजा, पेरियार, ये सब वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो। The rivers of the western flowing rivers, the western flowing rivers, you can write, पहले लिखो शेत्रुंजी, राइट। अब लिख ही रहो तो अच्छे से लिखो, फिर लिखो फर्स्ट रिवर, राइट, शेत्रुंजी, स्पेलिंग बताएं, SHETRUNJI, शेत्रुंजी फर्स्ट, सेकंड भद्रा, BHADRA, भद्रा सेकंड बस भद्रा। थर्ड इज धादर, DHADHAR, राइट। साबरमती एंड माही, माही, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बता रही हूं मैं। साबरमती, माही, धद्दर, शेत्रुंजी, यू हैव भद्रा। देन राइट वैतरना, VAITARA, वैतरना, VAITARNA, वैतरना। देन राइट काली नदी, देन राइट बेडती, BEDTI, बेडती, BEDTI। ओके, देन राइट शरावती, लिखो बाद में। मांडोवी, जुआरी लिखा, जुआरी, JUARI, जुआरी। देन राइट भरत पूजा, या डैश करके लिखो पोनानी, देन राइट पेरियार, उसके बाद लिखो पेरियार, फिर लिखो पंबा, PAMBA, पंबा। ठीक है, did we understand the rivers of the western ghats and the rivers towards the western side and the rivers towards the eastern side? एक बार ईस्टर्न साइड के नाम बताएं फिर से प्लीज। वंशधरा, ऋषिकुल्या, नागावली, पनेरू, पलार, गोदावरी, कृष्णा, पोनियार, वलार, कावेरी, मनेरू। 11 इधर और उधर कितनी है? ठीक है, याद करो 25 रिवर नाम, एटलीस्ट एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। इससे ज्यादा रिवर्स कोई और भी आएगी, हमें नहीं आई तो किसी को नहीं आएगी। सिंपल साफ बात है। मैंने 50-60 रिवर कर लिए, 30 रिवर तो मैंने शुरू की ही गिन ली थी। इंदस, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे तो हमने 50-60 रिवर के एटलीस्ट नाम जान लिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं आया तो फिर किसी को नहीं आएगा। ठीक है, गो विद दिस माइंडसेट, जो होगा इसी से एलिमिनेट करके आएंगे, और इससे ज्यादा नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा। इज इट फाइन?